about blessings tonight. और हमने आशीषों के बारे में सुना. And it's all very natural for each one of us here to be casting around, wondering, thinking, hoping, praying for blessings in our life. और ये बहुत स्वाभाविक बात है कि हम एक दूसरे के पास जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में आशीषों के लिए. Plural blessings, many blessings. और ऐसी कई आशीषें, बहुतायत की आशीषें. In our health, in our pocketbook, in our marriages. और हमारे जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे शादीशुदा जीवन में. But there is one supreme blessing above all other blessings, which we must never forget. एक अनोखी आशीष है जो इस बारे में हमने कभी भूलना नहीं है. And that is the blessing of salvation, the new life in Christ. और वो लोग जो हमारे बीच में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन को पाते हैं, we must be eternally grateful. और हमने अनंत काल तक उसके लिए धन्यवादित होना है. Because there is no human wisdom, no spiritual discipline. और ये कोई मानव ऐसी समझ से बढ़कर है, ये या आत्मिक अनुशासन से भी बढ़कर है. No religion, no philosophy. और किसी प्रकार का ऐसा ग्रंथ नहीं या किसी प्रकार का ये कोई ऐसा समझ की बातें नहीं. That can give us only that which Jesus Christ can give us. कोई ऐसी बात नहीं इस संसार में जो यीशु मसीह देता है, वो चीज इस संसार में हमें. And the good news is this. और अच्छा सुसमाचार ये है that we are saved or salvaged by grace alone, कि हम बचाए गए, उद्धार पाए हैं अनुग्रह के कारण, through faith alone, सिर्फ विश्वास के कारण, because of Jesus Christ यीशु मसीह के कारण, सिर्फ यीशु मसीह के कारण. We must never forget that. ये हमने कभी नहीं भूलना है. And the scripture I would like to cite tonight, और ये जो वचन आज मैं रात को बोलने वाला हूँ, Martin Luther tells us, और मरकुस और लूकोस ने दोनों हमें बताया. we stand here, और हम यहाँ खड़े होते हैं, dependent on grace alone, और उस अनुग्रह के अधीन होते हुए, not on works, not our own cleverness, और हम अपने काम को लेके नहीं, because of the living word of God, और सिर्फ परमेश्वर के वचन के कारण, which was made plain, और जो हमारे लिए बनाया गया, which was brought back to our attention rigorously and vigorously, और जो हमारे ध्यान की ओर केंद्रित किया गया 600 years ago, और इतने कई सालों पहले, mainly through God working through one man, और सिर्फ परमेश्वर पिता काम करता हुआ एक व्यक्ति के द्वारा, Martin Luther. मार्टिन लूथर. And it was Martin Luther who said, और ये मार्टिन लूथर था जिसने कहा था, that if you don't understand Romans 20 to 26, अगर आप नहीं समझेंगे रोमियो 20 से 26 तक, you don't understand the book of Romans, अगर आप रोमियो की किताब को नहीं समझे, and if you don't understand the book of Romans, तो अगर आप रोमियो की किताब को नहीं समझे, you don't understand the Bible, आप प्रभु के वचन को नहीं समझ पाएंगे. and if you don't understand the Bible, और अगर आप प्रभु के वचन को नहीं समझ पाएंगे, you don't understand anything worthwhile at all. You don't understand anything worthwhile, useful. और आप किसी भी इस्तेमाल की चीज को या समझ की बात को नहीं समझ पाएंगे जिंदगी में. So let's briefly look at Romans 20 to 26. और आइए हम जल्दी में देखेंगे रोमियो की किताब 20 से 26 तक. You'll need to go back to Romans 3, 20 to 26. और रोमियो की किताब 3 20 से लेकर 26 तक. And make sure you understand it fully and clearly. और इस बात को याद रखें कि बिल्कुल आप अच्छे समझ के रूप में इसको समझें. And understanding consists of understanding the ideas, the concepts and the words. और जो प्रभु ने वचन उसमें कहा है या समझ की बातें उसमें लिखी है, उसको जरूर समझें. So this, what we'll look at for a second here, is the essence. ये पूरा उसका तोड़ है जो प्रभु के वचन में दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में. It's good to know that the gospel broadly means, who is Christ, fully God, fully man. ये बताता है कि प्रभु कौन है, मनुष्य रूप में कौन था, प्रभु के रूप में कौन है. The gospel broadly also includes all Christ's promises to us. और ये जो प्रभु ने हमसे वायदे किए हैं उसके बारे में बताता है. And it includes an understanding of his crucifixion and resurrection and the significance and implications of that. उसके क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसका जी उठना, उसके बाद जो हमारे जीवन में प्रीति को दिखाता है वो बताता है.